Assalamu alaikum. Dr. Zeeshan ने अभी join नहीं किया. Should we start or wait for 2 minutes? I think we can wait for a couple of minutes. Sure. उज़ैर, आप चेक कर सकते हो डॉक्टर ज़ीशान को? जी सर, मैंने मैसेज किया, वो कह रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं. और डॉक्टर मिशाल ने भी केस प्रेजेंट करने. डॉक्टर मिशाल भी ज्वाइन कर रही हैं. 1 मिनट. I think we should start. और डॉक्टर ज़ीशान पे ज्वाइन करेंगे हमें. उज़ैर यही स्टेटस है. डॉक्टर ज़ीशान is just joining. जी मैं दोबारा चेक. Kiran, I think you can start with the introduction and then we'll take over. Okay, fine. जी ठीक है. Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with the experts, and our expert for tonight is Dr. Zeeshan Ali. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you are all muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for question or use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Janase Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of the spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session is Dr. Zeeshan Ali Junejo.
is a fellow of College of Physicians and Surgeons, Pakistan, and currently working as Associate Professor of Medicine at Jinnah Sindh Medical University and Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi, Pakistan. He has been involved with PARSA ECHO Pakistan since the very beginning and been a true ECHO champion. He is an ECHO lead in the province of Sindh and has the keen interest in medical education. Currently, he also holds the portfolio of Vice President in Pakistan Society of Hepatology. He is responsible for overseeing all the projects related to Sindh and enrollment of spokes locally. We have two cases today. Dr. Mishal will be presenting the cases. So I will now hand over to Dr. Mishal. Dr. Okay, thank you, Kiran. Assalamu alaikum. Was there? Please share your screen. Yes, I have shared the screen. Can you see it? Yes, thank you. Okay, so first case, it's about a 25-year-old female who presented with generalized body pains and weakness. She's a known case of hepatitis B virus infection since 2017, and she was taking tablet tenofovir 300 mg since then. But she stopped the medicine 1 year ago due to her pregnancy, and now after delivering the baby, she wants to continue the same medicine again. Her lab reports are as follow. In 2017, her HP was 9.9, TLC count was 8.6, platelets were 202, and TSH was normal, blood sugar was normal. She was negative for anti-HCV. Her hepatitis B surface antigen was positive, and her HBV DNA was 8,316. In 2018, HB was 9.2, TLC was normal, platelets were normal, her LFTs were normal, and her HBV DNA became negative. And in 21, her HB was 10.2, TLC was 7.5, platelets were 236, LFTs were normal, and her HBV DNA became negative, and she was her anti-HBE was also negative. Anti-HBE was positive, and HBE antigen was positive, and anti-HBE was negative. And anti-HIV is also negative, anti-HDV is negative. And now in 7 November, her HB is 10.5, TLC count is 6.5, platelets are 202, her LFTs are bilirubin is 0.7, ALT is 42, AST 52, alkaline phosphatase 256, and her albumin is 4.0. And her HBV DNA is negative. So what are the indications to start treatment for hepatitis B virus infection, and how should we proceed with this case? Thank you, Dr. Sadher. मैं थोड़ा सा जरा समराइज करना चाहूँगा क्योंकि ये अक्सर हमारे पास ये केसेस आते हैं. आई एम श्योर डॉक्टर जीशान कभी एक्सपीरियंस में ये केसेस जो हैं गुजरे होंगे. Basically, we have a lady, 25 years of age, or 2017 में hepatitis DNA positive. We don't have LFTs of that time, और इसी दौरान में इनको tenofovir TDF शुरू की गई, and she probably took it for 2 to 3 years. और उसके बाद for some reason pregnancy में जबकि हम चाहते हैं कि जारी रहे, वो बंद भी हो गई on her own. 2018 में जो टेस्ट हैं उसमें आपने देखा E एंटीजन पॉजिटिव और एंटी HB नेगेटिव. आई थिंक ये गलत होगा क्योंकि DNA नेगेटिव है. एनी हाउ ये टाइपोग्राफिकल एरर हो सकती है, लेकिन DNA has remained negative since then when she started treatment, maybe for 2 years time. Ultrasound is okay. तो Zeeshan, over to you, क्योंकि अब
after being partly treated, what I can say from this information, अब इन पेशेंट की ख्वाहिश है कि वो दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करना चाहती हैं based on surface antigen positive. DNA has remained negative throughout. So please, what is your take on this case? आप म्यूटेड हो जीशान. सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था तो आई गॉट ऑफलाइन एज यू कैन आपकी आवाज थोड़ी दूर से आ रही है. आई डोंट नो इफ यू क्लोजर टू द माइक. बेटर अभी भी वही मसला है ज़ीशान, जरा थोड़ी सी दूर आ रही है. आपकी आ रही है आवाज. इट्स नॉट. माइक is this now better? जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी स्टॉप द ट्रीटमेंट वी हैव टू मॉनिटर. लेकिन अगर देखा जाए तो ये टाइम जो कि मॉनिटरिंग का होता है, जो कि ट्रीटमेंट स्टॉप करने का जब हम डिसीजन लेते हैं, अब रीट्रीटमेंट का जो डिसीजन होता है वो डिसीजन आफ्टर द पीरियड ऑफ, जब आप 3 महीने 4 महीने के बाद जब पेशेंट आपके पास आता है तो रीवैल्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट जो होती है वो बेसिक क्राइटेरिया वही फॉलो होता है जो इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट का होता है, कि जो इंडिकेशंस ट्रीटमेंट की हैं at the first time, same indication will remain for the treatment when they come second time after a, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट पीरियड, और वो डिफॉल्ट पीरियड इस पेशेंट का गुजर चुका है. इफ दिस पेशेंट probably still not getting better voice, मैं Zishan, थोड़ी सी improvement है. We are not getting a good voice. So जो बेसिक क्वेश्चन पहला था कि शुड वी स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस. पेशेंट आपके पास इवैल्यूएशन के लिए आया है, इसमें आपने देखना ये है कि इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट है या नहीं है. सो एनी वन ऑफ यू कैन टॉक. मेरा ख्याल है अनम्यूट करने के परमिशन इनमें दे दें या हैंड रेज कर लें, और यू कैन टॉक इन द. किरण, इज इट बेटर नाउ? ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डॉक्टर ज़ीशान आई थिंक यू शुड कैरी ऑन. ठीक है. Probably there is, मैं सेटिंग में बाद में चेक करूंगा सिस्टम से या तो माइक में. But anyway, so anyone of the participant who can give me any indication, does this patient have any indication if this patient would have came first as an initial treatment option? Forget about the treatment defaulter status of this patient. Can anyone comment in the chat, or someone want to speak on the mic? If you unmute the mic. Indication of the treatment, as you can see, the AST-LT is within higher normal ranges. You can see ALT 42, 52. So you have to look into the fibrosis score. That is one thing which you look, whether or not this patient is cirrhotic or not, because for hepatitis B, defining the status of cirrhosis and fibrosis is important. But looking at the HBV DNA negative,
unless this patient is decompensated cirrhotic, there won't be any indication of the treatment. So to me, at this point, I'll continue to observe this patient and will observe with HBV DNA as well, because some patients would have fluctuating DNA. It may be negative at this point, may come out to be positive after 2 or 3 months, or it may be fluctuating. And the APRI, if I calculate, probably in this particular case, because for every patient with hepatitis B, C, we have to ascertain this fibrosis score. For that, APRI is a very simple score which can be carried out in almost every clinic. And FIP4 is another one, which is simple office-based calculations, few age, ALT, AST, and platelet. That's all we require to have. So if I calculate this patient's age being 30, AST being 50, 1.15, that makes the case of the patient being not in any significant cirrhosis HBV DNA. So obviously we are going to wait for this patient. If I just change the scenario, if this patient would have came after 1 month of stopping the treatment, this may have been a different scenario, because the default period have to be defined. With 2 years of default period, the flare period after stopping treatment has already been passed, so we don't have to worry about that. But if this patient would have came within 4 weeks of the time of stopping the treatment, the scenario may have been different in this particular case. So can we scroll down to the questions? So the indication of starting the treatment, as you know, it's viral load more than 2000, ALT above normal range, and any evidence of fibrosis or significant inflammation. So there is no fibrosis. DNA level is not grossly raised ALT. It's more within 1.5 times upper limit of the normal. So we are going to observe this patient with all practical purpose. And how should we proceed in this particular case? As I've said, because this has been partially treated patient and this marginally raised ALT, I would like to observe this patient within 3 months with LFT and HBV DNA as well. Remember, this patient was HBe antigen positive, negative to begin with. So would need monitoring for later on purpose. Sorry, it was HBe antigen negative patient and remains anti-HBe is still has not been reported. I would like to see that as a seroconversion has taken place or not in this particular case, which has not been repeated. Asad, any other comment you want? जी, thank you Zeeshan. मैं I wonder if it's possible कि आप इसको म्यूट करके अगर मोबाइल से ज्वाइन करके मे बी आपकी साउंड ट्रांसमिशन बेहतर हो जाए, तो क्योंकि आपकी आवाज काफी मदम आ रही है. बट एनी हाउ जो डिस्कशन है वो ये है कि क्योंकि लिवर में फाइब्रोसिस का एविडेंस नहीं है, तो डीएनए इज नेगेटिव, तो इस वक्त probably will keep the patient under watch. हम इसको मॉनिटर करेंगे इस वक्त. अगर सिरोसिस का एविडेंस या फाइब्रोसिस का एविडेंस एप्री स्कोर पे या फाइब्रोस्कैन पे या उसमें होता तो probably there would have been clear indication. ALT थोड़ा सा अपिश है ज़ीशान इनका जो मसन, लेकिन डीएनए नेगेटिव है. जो बाहर चीज होती है जो क्लिनिक में स्पेशली आप लोगों के पास भी जो अपने आप पेशेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट्स को जनरली हम फॉलो करते हैं. और मैं अपनी प्रैक्टिस में यूजुअली 6 मंथ्स में जरूर एक दफा इनको बुला के इनकी लैब्स वगैरह करके देखता हूँ कि चीजें किस तरफ जा रही हैं. और हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है. The development of hepatocellular carcinoma, of course, in due course of time, usually years after. लेकिन and again इसकी एक इम्पोर्टेंस रहती है जो हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पेशेंट इम्यून सप्रेशन में या वैसे जाता है
तो उस वक्त भी चीजों को जो देखना पड़ता है कि कोई रीएक्टिवेशन ना हो रही हो. So any questions on this? Dr. Zeeshan is here from the audience. Uzair, you can stop share. अगर कोई questions हैं तो we can. Probably we are not having We can hear you a lot better, Zeeshan, if you can summarize. आपकी normal आवाज आ रही है. I think my net problem remains the same. So anyway, coming back to this. आप थोड़ा सा समराइज कर दें इन अ कपल ऑफ मिनट्स जो आपका जो टेक ऑन दिस केस, क्योंकि आवाज आपकी जरा डिम थी. अच्छा, मैं इसमें सिर्फ इतना समराइज करने लगा हूँ कि ये अगेन यंग पेशेंट है, फाइब्रोसिस नहीं है इस पेशेंट के अंदर, बॉर्डरलाइन एएलटी रेज्ड है, इट्स फॉर दैट इज ओनली कंसर्न. एचबीवी डीएनए नेगेटिव है. जो फॉलो पीरियड था जो इम्पोर्टेंट वो गुजर चुका है, जब क्योंकि ट्रीटमेंट जब आप स्टॉप करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो इसमें चीज हमने देखनी होती है वो इसके अंदर हमारी जो है एएलटी फ्लेयर्स होते हैं और वर्जनिंग ऑफ फाइब्रोसिस होती है. So that has that period has already been gone. अब इसको ऑब्जर्व करना है हमने. नए पेशेंट को जब भी आप देखते हैं इसको एज ए न्यू पेशेंट आपने देखना है विद हिस्ट्री ऑफ द डिफॉल्टर ऑफ द ट्रीटमेंट. सिर्फ मॉनिटरिंग थोड़ी क्लोज रखनी है कि अगर फ्लक्चुएशन ऑफ डीएनए है या नहीं है. सो दैट्स व्हाट द रिकमेंडेशन इज. एंड इफ देयर इजंट एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस केस वी कैन मूव ऑन टू द सेकंड केस. ज़ीशान, अपनी प्रैक्टिस में आप इनको किस तरह से फॉलो करते हैं? मैं जिस तरह मैंने बताया, मैं यूजुअली 6 मंथ्स के बाद एक दफा बुला के, और यूजुअली मैं डीएनए और एलएफटी चेक करता हूं और अल्ट्रासाउंड. सो व्हाट डू यू डू? मैंने जिस तरह से बोला था, शायद उसको तो आवाज मेरी साफ नहीं थी. जब उस टाइम पे ये आवाज इतनी क्लियर नहीं थी, मैंने यही बात की थी कि ये पेशेंट क्योंकि बॉर्डरलाइन एएलटी रेज्ड है और ट्रीटमेंट डिफॉल्टर है, तो आई लाइक टू फॉलो दीज पेशेंट्स विद इन 3 months एटलीस्ट. 3 महीने के डिफरेंस से 2 दफा तो मैं इनको देखूंगा. इफ रिमेन स्टेबल कि एएलटी फ्लक्चुएशन नहीं है बहुत ज्यादा और जो है कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है एचबीवी डीएनए के लेवल के ऊपर. एंड एचबीवी डीएनए के साथ सिर्फ एलएफटीज के साथ नहीं करेंगे. द डिफरेंस फॉर क्योंकि ये डिफॉल्टर पेशेंट है, न्यू पेशेंट नहीं है, अनट्रीटेड पेशेंट नहीं है, तो आई वुड फॉलो विद एचबीवी डीएनए विद इन 3 months एटलीस्ट ट्वाइस. इफ दैट रिमेन्स स्टेबल तो स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन है 6 months अपार्ट, आई विल फॉलो दोज कि इन पेशेंट्स को जो है विद एचबीवी डीएनए और एलएफटीज और एंटीजन एंटी एचबी के स्टेटस के साथ एवरी 6 months इसको फॉलो करें. ठीक है, थैंक यू. Thank you, Zeeshan. I think we move on to the next case. Uzair, if you can share the screen. अस्सलाम वालेकुम सर. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी डॉक्टर भुट्टा, प्लीज गो अहेड. जी सर, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि एक पेशेंट टेनोफोविर अगर ले रहा है तो अगर इस दौरान में प्रेगनेंसी अगर हो जाती है फिर ट्रीटमेंट बंद कर देना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन भुट्टा साहब, एक्सीलेंट क्वेश्चन. जो हम ये पॉइंट उस केस में डिस्कशन शुरू करने से पहले ये भूल गए थे कि देखें प्रेगनेंसी के दौरान देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट. खास तौर पे जो पेशेंट टेनोफोविर ले रहे हैं, टेनोफोविर इज कैटेगरी बी ट्रीटमेंट. अगर पेशेंट को हमें जरूरत पड़ती है प्रेगनेंसी के दौरान ट्रीट करने की फॉर द इंडिविजुअल रीजन कि किसी पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें शुरू करनी है, जैसे कि हम जो है वर्टिकल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट्स की, तो वो
ट्रीटमेंट हम टेनोफोविर से ही शुरू करते हैं. सो देयर वाज नो रीजन कि टेनोफोविर को बंद किया जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. टेनोफोविर इज सेफ ड्रग. तो चल रही थी तो हम चलने देते, और 6 या 10-12 मंथ फॉलोइंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम पेशेंट को रीअसेस करते, क्योंकि 2 पीसीआर उसके ऑलरेडी नेगेटिव थे. अगर इस दौरान 1 साल के अंदर पीसीआर नेगेटिव आ जाते तो वंस शी इज ऑफ पोस्टपार्टम फेज जो है, तो वी मे हैव थॉट अबाउट विड्रॉइंग द ट्रीटमेंट जो नई गाइडलाइन है, अनलेस. लेकिन ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ उन सेंटर्स के ऊपर वैलिड है जो कि क्लोज मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट जो कंप्लाइंट हो, क्योंकि आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट जो रिस्क होता है वो डिकम्पनसेशन का होता है बिकॉज ऑफ द फ्लेयर ऑफ हेपेटाइटिस. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है टेनोफोविर इज सेफ इन प्रेगनेंसी, इट शुड हैव बीन कंटिन्यूड अदरवाइज. जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया. Okay, so we move on to the next case. Achha, there is a question. Now questions are coming out. That's good. Let's have that question क्योंकि पिछले केस के ऊपर ही है. Would you advise fibroscan of this patient now if it turns out to be showing significant fibrosis F2 greater than? Should we be restarting the tenofovir in this patient? That's again a very good question. Fibrosis की evidence अगर आ जाती है, क्योंकि FIB4 जो है प्री जो है इसका वो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज फाइब्रोसिस को नहीं शो कर रहा था. FIB4 was 1.15 something. It's तो at this point I may not have gone for the जो है, क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर what I do एप्री और FIB4 में दोनों देखता हूँ. इफ दे आर और क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपनी जगह पे के पेशेंट को कि अगर एविडेंस ऑफ कोई सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस या सिरोसिस है या नहीं है, तो एप्री और FIB4 अगर वो दोनों ही जो है नो फाइब्रोसिस वाले उसमें आ रहे होते हैं, तो वी जनरली डोंट डू फाइब्रोस्कैन एवरी पेशेंट. अगर एक जो है वो सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस शो कर रहा है या बॉर्डरलाइन शो करता है और दूसरा जो है वो नॉर्मल आ रहा होता है, इन दैट केस yes, I would have gone for the fibroscan now. Otherwise, at this point, no, I won't go for the fibroscan. Coming to the next part of the question कि अगर ये fibrosis show करता, now this would have been a tricky decision and case to case basis के ऊपर guidelines बड़ी debate है कि एक पेशेंट जो कि सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस का है, एक और उसके अंदर ALT बॉर्डरलाइन हाई भी है लेकिन PCR नेगेटिव है. PCR नेगेटिव पेशेंट में ट्रीटमेंट शुरू करने की कोई क्लियर इंडिकेशन मौजूद नहीं है. डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस में यस, आई वुड हैव क्लियरली गॉन टू स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट. अगर डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस नहीं है, probably I would have waited for PCR to come positive to start with the treatment, but that remains fluid condition, patient to patient, case to case basis पे है. Guidelines क्लियर नहीं है, इसके ऊपर इंडिकेशन नहीं कहती PCR नेगेटिव पेशेंट्स के अंदर. लेकिन in reality, in some patients, we do start with the antiviral treatment with evidence of fibrosis, even with negative. जी, डॉक्टर मिशाल, My other device got disconnected. मेरा ख्याल है I would have to speak here again. तो केस टू केस बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाता है. पेशेंट जो कि फाइब्रोसिस के साथ हो, यंग पेशेंट हो और ALT बॉर्डरलाइन है, यस आई वुड हैव थॉट ऑफ, लेकिन इसके ऊपर गाइडलाइंस बहुत क्लियर नहीं है. जी, जीशान, एक और क्वेश्चन. Ali Adar, welcome Ali Adar. Now the question, HbS antigen level important in this case? Yes, if this would have been fibrosis और अगर PCR negative है तो HbS antigen quantitative जो है may have given us some clue regarding starting the treatment or not to start with the treatment. Ali Adar, मेरा ख्याल है आप खुद अगर comment करना चाहें, you are yourself an expert and a senior person. I would welcome your comments on this case. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया, डिस्क्राइब किया, वेरी वेल. और मैं इन सारी चीज़ों के साथ आपके साथ इत्फाक करता हूँ. और अगेन वी हैव टू द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एज वेल इन दीज केसेस, specifically young age patient, if they have a strong first degree relative
having cirrhotic liver or malignancy. तो ये बी कैरियर केसेस जो हैं इसी तरह के उसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो और ALT रेज हो और अगर फाइब्रो स्कैन पे F2 F3 आ जाए then things will go toward the treatment or very close monitoring Agree. as well, sir. Excellent point. Excellent point, Ali. Family history is again very important with HCC and decompensated cirrhosis. Though young patient with negative PCR, but if the evidence of fibrosis there, it could be a candidate. Excellent point. Thank you, Ali. Zeeshan, I think we move on to the next case and then we can keep the discussion on. This may be hepatitis B. Mishal, if you can go through the history quickly. Ji, sir. Okay, second case, it's about a 62 years old female who's a known case of hypertension, presented with itching all over body for past 1 month, fever and headache. Her routine labs were performed, which are as follow, like her HB is 8.8, TLC 5.4, her platelets are 102, creatinine 0.8, bilirubin is 0.9, ALT 279, AST is 176, alkaline phosphatase 142, albumin is 3.2, BSR 88. She is positive for anti-HCV and her HCV PCR is also positive. Hepatitis B surface antigen is positive and her HBV DNA is also positive. E antigen is negative and anti-HBE is positive. Her anti-HDV was also positive, but HDV PCR was negative. And anti-HIV1-2 were negative. Her EPI score is 4.3. And on ultrasound abdomen, her liver is coarse and there is mild splenomegaly. What is the impact of hepatitis B and C virus co-infection on the course of disease and how should we treat this patient? Ji, thank you, Michelle. मैं quickly summarize करूंगा. We have a 62 years old lady, hypertensive with history of pruritus and fever. On lab में she is anemic, thrombocytopenia भी है, LFTs are deranged, albumin is less than 3.5, HCV RNA there is a high viral load, DNA is also significant viral load of around 31,000 units, and E antigen negative disease. That Delta was positive on serology, लेकिन उसका जो PCR किया that came back as negative, and HIV is negative. So APRI points towards significant fibrosis, splenomegaly भी है. तो जी Zeeshan, सब कुछ ही है इस पेशेंट को, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? Now this is elderly patient with evidence of cirrhosis. HB लो है, platelet लो है, albumin lower side के ऊपर है, और so it's completely different scenario what it was in the last case. And then there is co-infection as well. B और C दोनों positive हैं. NTHB गो केस का positive आया हुआ है, but still B का PCR भी है, C का PCR भी positive है. So एक तो ये cirrhotic patient है, so there has to be some urgency in treating these patients, क्योंकि अभी जब से हमारे पास oral antiviral therapies available हुई हैं, we prefer to prioritize patients treatment to the cirrhotic patients before they end up in decompensation. So that clearly seems to be a case of compensated cirrhosis. नीचे कर ले, मुझे questions की तरफ ले आए जो आपने raise किए. Scroll down. Thank you. Now coming to this ultrasound में भी evidence आपकी मौजूद है, APRI भी 4.3 है, that's very clear indication. And coming back to this, कि आपने हर patient के ऊपर जो है evaluate करना है for evidence of fibrosis and cirrhosis देखना है. So all practical purpose hepatitis B and C elderly patients with compensated cirrhosis. So what is the impact of hepatitis B and C co-infection in the course of the disease? Worsening होती है, बहुत तेजी से fibrosis की तरफ जाते हैं ये patients, early treatment warrant करते हैं, ठीक है ना? तो whenever there is co-infection, they will affect जो है ना, जो C का कोर्स है, खास तौर पे जो chronic indolent कोर्स है, वो उस तरह का नहीं रहता अक्सर औकात. B गो के suppress होता है most of the time because of the C, लेकिन ये है कि इस particular case में तो ऐसा भी नहीं हो रहा. B की भी viral replication ongoing है इस particular case में. With exposure to the D as well, गो के उसका PCR negative है, we never know क्यों in between वो positive आ जाए.
तो we'll have to monitor that as well in this particular case. तो वर्जिंग होती है, अर्ली इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो और दोनों की ट्रीटमेंट एक साथ शुरू करने की जरूरत है. जो ट्रीटमेंट का फेज है, because whenever we start with the treatment of hepatitis C, if we don't start at the same time with hepatitis B in patients suffering from hepatitis B, then there is a flare of hepatitis B. क्या आप C तो ट्रीट कर देंगे, B की वजह से फ्लेयर होगा, पेशेंट के अंदर वर्जनिंग आना शुरू हो जाएगी. इवन सरफेस एंटीजन पॉजिटिव पेशेंट जिनका पीसीआर नेगेटिव होता है, उसके अंदर भी जो है वो पीसीआर को और एलएफटी को मॉनिटर करने की इंडिकेशन है. जनरली हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स में हम बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं करते. ओरल एंटीवायरल थेरेपी जो सी की अवेलेबल है वो बड़ी इफेक्टिव है और उसके साइड इफेक्ट्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है. उसमें कोई मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट हमें रिकमेंडेड नहीं है. लेकिन जब कोई इन्फेक्शन है तो उस पर्टिकुलर केस में वारंटेड होती है पीसीआर नेगेटिव. लेकिन अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो इन एनी केस आपने शुरू करनी ही करनी है. अभी जो नई इंडिकेशन 2021 की आई है उसमें तो ये कि पीसीआर नेगेटिव पेशेंट को भी आप ड्यूरिंग द फेज ऑफ हेपेटाइटिस सी और 1 मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी जो है वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट दे दें. यू ट्रीट देम एज ए इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज. जिस तरह से आप मीथोट्रेक्सेट या रिटक्सीमैब वगैरह पेशेंट्स को देते हैं, तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव को प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट दे देते हैं प्रोफिलेक्टिकली, ताकि ये पेशेंट फ्लेयर में ना जाए और रिएक्टिवेशन में ना जाए. तो जो डीएनए नेगेटिव पेशेंट है उसमें भी ट्रीटमेंट की इंडिकेशन है, लेकिन वो क्योंकि प्रीएम्प्टिव होती है और प्रोफिलेक्टिक होती है, तो आफ्टर के जो इम्यूनोसप्रेसिव फेज है उसके बाद आप विड्रॉ कर लेते हैं, तो सी की ट्रीटमेंट के बाद आप विड्रॉ करते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सिरोटिक पेशेंट है, पीसीआर पॉजिटिव है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट आप देंगे इस पेशेंट को, क्योंकि बी का अगर ये सी नहीं भी होता तो उसमें भी इंडिकेशन थी इसमें. तो इसमें बी और सी दोनों की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे. सी की ट्रीटमेंट ज़ाहिर है फाइनाइट होगी. इफ यू आर ट्रीटिंग विद सॉफ्ट वेल्पा विद रायबा देंगे 3 महीने देंगे. इफ यू आर ट्रीटिंग विद सॉफ्ट टेक्ला अगेन विद रायबा देंगे 6 मंथ देंगे. तो दैट वुड बी द ट्रीटमेंट फॉर द सी. बट एट द सेम टाइम बी की ट्रीटमेंट भी शुरू करनी है. मे इट बी स्टार्टेड विद एंटाकेविर और टेनोफोविर, व्हाटएवर जो फर्स्ट टाइम दोनों ड्रग्स हैं वो यूज की जा सकती हैं. लेकिन बी की ट्रीटमेंट इसमें क्योंकि सिरोटिक पेशेंट है, पीसीआर पॉजिटिव है, इस पेशेंट में लाइफ लॉन्ग होगी. जी थैंक यू. डॉक्टर अली हैदर, यू आर आल्सो ऑनलाइन. आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? एनी पॉइंट्स दैट आर मिसिंग? आप जी सर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. नहीं, डॉक्टर जीशान ने बिल्कुल ठीक और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, बताया. ट्रीटमेंट दोनों जो है वायरसेस की साथ देनी है, और जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग इसमें चलेगी. एक दूसरी जो पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है ऐड करना चाहूँगा कि इस पेशेंट को एवरी 6 मंथ यू विल फॉलो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. उसके लिए एवरी 6 मंथ जो है एटलीस्ट मिनिमम अल्ट्रासाउंड लिवर फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा with or without अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल एवरी 6 मंथ जो है वो मैंडेटरी है. ये करना बहुत ज़रूरी है. जस्ट मुझे थोड़ा इसके जो वायरल मार्कर्स हैं उसी के ऊपर कंसर्न है कि इसके वायरल मार्कर्स काफ़ी दो सिरोटिक लिवर होने के बावजूद काफ़ी रेज है. So can you look for other causes as well in this cause, in this particular patient? या स्क्रीनिंग में अल्फा फीटोप्रोटीन करा ले, या और कोई काज के लिए देखना चाहिए, या एक्यूट हेपेटाइटिस को रूल आउट करना चाहिए? जी सर. Excellent point, Ali Adar. This is our observation again with our experience कि chronic hepatitis C cirrhotic patient या chronic hepatitis C patients या hepatitis B patient 150 से ज़्यादा ALT बड़ा rare है, और any patient with more than 200 ALT, in my practice I always look for the acute cause of hepatitis. acute hepatitis का cause क्या है? इसमें गो के bilirubin ठीक है, इसकी itching की complaint भी है. Many of the time we have picked up hepatitis E, acute hepatitis E as a presenting complaint. B और C तो उसको शायद पहले से था, वो सिरोटिक भी हो गया उसकी वजह से, और then they present with acute hepatitis, वो autoimmune था या hepatitis E था, and they presented. Excellent observation, Ali Adar, कि 250 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा जो ALT आता है, always look for acute
decompensation. And cirrhotic patient hai, I agree with the suggestion if we have to monitor for lifelong for the HCC surveillance. जी, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, एनीमिया भी काफी है। इसको जब आप वर्कअप करेंगे तो जस्ट इंश्योर के इसकी एंडोस्कोपी और वेरिसिल लाइगेशन की अगर जरूरत है, और रिबाविरिन के साथ वी जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि एनीमिया काफी है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा एचपी को बिल्ड अप करके, और हम बहुत ज्यादा वेट भी नहीं कर सकते। एंड समटाइम्स अगर आपने बैंडिंग कर दी है, पेशेंट अदरवाइज उसका स्टेटस अच्छा है, एसाइटिस कोई नहीं है, तो वी जस्ट टेक केयर एनीमिया में भी इसको ट्रांसफ्यूजन करके थोड़ा सा बिल्ड अप करके, तो देन वी शुड गो अहेड। ज़ीशान, एनीथिंग यू? और अल्फा फीटोप्रोटीन की हमने बात की है, वो इसमें मिसिंग था। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बेसलाइन भी अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करें। अल्ट्रासाउंड अगेन वी ऑल नो एंड लर्न बाय आवर एक्सपीरियंस कि अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत सॉरी जो HCC है अल्ट्रासाउंड पे, वो बहुत ज्यादा ऑपरेटर डिपेंडेंट है, और वी रियली नीड टू स्ट्रेस देम के लुक फॉर अ नोड्यूल इन द लिवर। इस पेशेंट में बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर हैं, बी भी है, सिरोटिक भी है, सी भी है, डेल्टा एटलीस्ट सेरोलॉजी पॉजिटिव है, तो वी जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। इस पेशेंट में डेफिनेटली हमें एक अल्ट्रासाउंड जो है ना, हमें स्पेसिफिकली लिवर स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। इन माय प्रैक्टिस आई राइट liver ultrasound for HCC only. I don't write upper abdomen in these patients. When I send to any ultrasoundologist, if I don't know who is going to do it, I write it liver ultrasound for HCC surveillance. Never write ultrasound upper abdomen. वो बहुत सारी चीजें आपको जरूरत ही नहीं है, आप लिख के रिक्वेस्ट ही वो चीज दें जिसकी आपको रिक्वायर्ड है, ताकि अगले बंदे के पास जो 5 मिनट है वो 5 मिनट लिवर पे ही लगाए उस पेशेंट के लिए, अगर वो बिजी प्रैक्टिस के अंदर अपनी है। एंड कमिंग टू दिस के अल्फा फीटोप्रोटीन आपका बेसलाइन होना चाहिए। हायर अगर सस्पिशन है क्लिनिकली, तो आई डू एडवाइज दीज पेशेंट एट द बेसलाइन बिफोर स्टार्टिंग द थेरेपी। एट सम टाइम ट्राइफेजिक CT भी हम कराते हैं, इवन क्योंकि प्रॉब्लम विद द अल्ट्रासाउंड इज मेरा ख्याल है अक्रॉस द कंट्री सब जगह है कि आपको यू नेवर नो हु इज डूइंग इट। इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल वेयर आई एम, आई नेवर नो कि एक रेजिडेंट ने किया है या किसी हाउस ऑफिसर ने किया है या किसी सीनियर रेजिडेंट ने किया है, साइन तो कोई भी कर रहा होता है आखिर में। डिपेंड्स अपॉन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जी सर, मेरी सजेशन इसमें जनरली ये है कोलीग्स के लिए कि आपकी प्रैक्टिस में ऐसे रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट जिनके ऊपर आपको स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंट हो, तो आप स्पेसिफिकली वो पेशेंट इस तरह के उनके तरफ भेजा करें और उनको रिक्वेस्ट लिख के भेजा करें, लाइक डॉक्टर ज़ीशान मेंशन्ड के अल्ट्रासाउंड लिवर स्पेशली फॉर नोड्यूल और HCC, तो वो फिर जो है ना वो इस तरह के पेशेंट पिक हो जाते हैं। और मैं रूटीन में 2-3 हमारे पास यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हैं, FCPS है, मैं तो इस तरह के केसेस डायरेक्टली उनको देता हूँ। और अ लॉट ऑफ केसेस जो आम अल्ट्रासाउंड पेशेंट करा के आते हैं, नॉर्मल लिवर नो HCC, उनमें HCC भी होता है, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस भी होती है, और पेशेंट जो है वो इसी तरह डिटेरियोरेट करते हैं। सो वेरी एक्सीलेंट कि आप डायरेक्टेड उनको ये रिक्वेस्ट करें कि लुक फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और इस तरह के सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट पहले से जो है ना आपके जहन में हो, जिनके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट हो, और रूटीन में फिर उनको रिक्वेस्ट करें। और पेशेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ता है। मेरे पास मैं एक जगह पे बैठता हूँ और जो एक्सपीरियंस्ड हैंड रेडियोलॉजिस्ट है वो किसी और जगह पे दूसरे कोने में बैठते शहर के। मैं स्पेसिफिकली पेशेंट्स को काउंसिल करता हूँ कि इसमें आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। आपको थोड़ी तकलीफ जरूर उठाना पड़ेगी, मगर आपकी जो बीमारी है उसका सही तरीके से पता चल जाएगा। वो काउंसलिंग करने के बाद वो दोबारा खर्च भी करते हैं और करा के भी आते हैं, और उनका प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई भी होता है। जी सर। Any question or comment from the audience on this case? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी बेटा सर ये हाँ जी, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये
बी और सी का ट्रीटमेंट तो हो गया, दोनों का हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इकट्ठा ही, और मॉनिटरिंग भी होगी जैसे HCG एवरीथिंग। वो जो इसका था क्या नाम है, प्रूराइटिस, जो इसको जॉन्डिस की वजह से, बिलिरुबिन की वजह से, क्या ये ट्रीटमेंट देने से वो भी ठीक फायदा हो जाएगा या उसका कुछ और करना पड़ेगा? जी थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया, मरीज को तो भूल ही गए थे। जी जीशान। That happens many of the time, we do forget about the patients. Excellent बुड्ढा साहब की जो है ना नजर अच्छी है। खैर, कमिंग बैक टू दिस इचिंग, जिस तरह अली ने पॉइंट आउट किया था कि एक्यूट हेपेटाइटिस जब रिजॉल्विंग फेज में होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि इसका ALT बढ़ा हुआ था, तो आई वुड हैव लुक फॉर द एक्यूट कॉजेज एज वेल। हेपेटाइटिस E IgM जो है वो दैट इज समथिंग, कोर IgM इज अगेन के फ्लेयर ऑफ हेपेटाइटिस B, क्यों फ्लेयर करता है बार इंटरमिटेंटली, और HBV DNA हो सकता है एक महीने पहले नहीं हो और अभी पॉजिटिव आया हो, वो फ्लेयर हुआ हो B का भी, तो अक्यूट फ्लेयर के साथ हो। सो दैट वो तो हेपेटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कि लिवर से रिलेटेड ये इचिंग है या नहीं है। अदरवाइज पेशेंट को इवेल्युएट करना हमने अदर कॉजेज ऑफ इचिंग में है कि अगर LFTs नॉर्मल हैं हमारे, अनलाइकली है कि ये हेपेटाइटिस B और C के, हमें दूसरे कॉजेज को भी एट द सेम टाइम देखना पड़ेगा, उसका स्किन की प्राइमरी प्रॉब्लम या सिस्टेमिक कॉजेज, क्योंकि इसमें हमने क्रेटिनिन नहीं किया, HP कम है इसका, पेशेंट डायबिटिक भी था, तो वी हैव टू लुक फॉर द रीनल फंक्शंस एंड अदर कॉजेज ऑफ द इचिंग एज वेल। और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहरहाल एंटीहिस्टामिन्स होते हैं जो आप सबको पता है। इसके अलावा पेशेंट जो है pediatricians ना ये दूसरे causes की भी। जी अली, आप ऐड कर रहे थे कुछ? जी सर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्रूराइटिस इटसेल्फ इज वन मैनी, जैसे आपने बताया अदर देन अदर काजेस के अलावा प्रूराइटिस इज आल्सो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज। तो उसी में भी प्रूराइटिस जो है वो लिवर डिजीज इटसेल्फ अगर काज कोई नहीं भी मिलता और उसी की वजह से भी होती है। और ये मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है पर्सनली कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट करने के बाद जब वायरस की SVR या एराडिकेशन हो जाती है तो पेशेंट गेट्स बेटर। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है सर। जी any other question? यूजुअली सिम्टोमेटिक में बुटा साहब, आप हमें भी पता है, आप भी देखते हैं, तो बाकी चीजें भी देख लें, स्पेशली हमारे यहाँ स्केबीज वगैरह, और ये काफी कॉमन है। वैसे एक तो लिवर रिलेटेड है ना, उसके तो हम बात कर ही रहे हैं। बहुत सारे ये जो कोलिस्टैटिक फेज होती है, अभी ज़ीशान जिक्र कर रहे थे एक्यूट हेपेटाइटिस की, वी डू गेट प्रूराइटिस, तो उसको तो हम देखेंगे, लेकिन लोकल कॉज भी देख लें। मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ, घर में किसी और को तो नहीं है? यू विल बी सरप्राइज, 50-60% ऑफ द पीपल से कि जी घर में एक आधे बंदे और को भी खारिश चल रही है। तो वी जस्ट सिंपल ट्रीटमेंट है, आपने स्केबिस का देना है। और ओके, एनी अदर क्वेश्चन? वी हैव अनदर 3 to 5 minutes. जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ट्रीटमेंट हम अगर अदर स्किन काजेज नहीं अगर होती, तो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको, कोलिस्टेटिक और ज़ारा B और C दोनों के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या उस ट्रीटमेंट से मरीज उसका इचिंग प्रूराइटिस ठीक हो जाएगा अगर और कोई स्किन काजेज नहीं है तो? जी जनरली जो कोलिस्टैटिक फेज है, LFTs, ट्रांसएमिनेज और ये सारा कुछ नीचे आता है तो फर्क पड़ता है। उसमें वी शुड एक्सपेक्ट इम्प्रूवमेंट, और अगर इसी की वजह से है, अनलेस कोई और चीज नहीं चल रही। और अगर आप जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे हाई ALT की, अगर आप ऑटो इम्यून प्रोफाइल कराएंगे, मे बी यू फाइंड प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस टाइप पिक्चर, आपको कोई जिस तरह एंटीमाइट्रोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी या कुछ तरह की चीज, वो थोड़ा सा चीज को दूसरी तरफ ले जाता है। लेकिन दैट्स द होल पॉइंट। अभी ज़ीशान ने बड़ा अच्छा हमें बताया है कि ALT अगर ज्यादा हो तो थोड़ा सा हमारा कंसर्न होना चाहिए, और स्पेशली अगर 200 से ज्यादा हो, कि ये सिर्फ वायरस पे ना डालें, कोई और चीज भी देख लें, स्पेशली इन सेरोटिक पेशेंट जिसमें यूजुअली हम कम देखते हैं इतनी हाई एलिवेशन ऑफ ट्रांसएमिनेजेस।
जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अली हैदर, आप जिस इलाके में हैं वहां पे डेल्टा वायरस काफी देखा जाता है। आप से मैं अगर सवाल करूं कि आप हेपेटाइटिस डेल्टा का वायरीमिक रेट कितना देखते हैं, जिसका मतलब मैं ऑडियंस के लिए कि एंटीबॉडी पॉजिटिव बट पीसीआर नेगेटिव, तो आपको कितना देखने को मिलता है? जी सर, थैंक यू। उमूमन सर अगर हमारे पास, अगर मैं ये रेशो ले लूँ कि 10 जो है anti-HDV पॉजिटिव केसेस आते हैं जिनमें, तो उनमें से राउंड अबाउट 3-4 पेशेंट जो है वो PCR पॉजिटिव होते हैं रफली, अगर मैं इसको इसी तरह ले लूँ। आवाज आ रही सर? जी जी आप क्लियर है। हाँ, तो अगर 10 पेशेंट हमारे पास anti-HDV पॉजिटिव और उनका हम PCR करा ले, तो उनमें से 3 से 4 पेशेंट्स में तो डेफिनेटली वायरेमिक लोड आता है, और वो दैट कोरिलेट पेशेंट को जो है आइदर, और उनमें ज्यादातर देखने में यहाँ पे आ रहा है जिनका जो है ट्रांसअमाइनेजेस लेवल जो है वो बढ़ा रहता है। जी सर। जी जीशान, एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर इस पेशेंट का डेल्टा आरएनए भी पॉजिटिव होता तो फिर हम क्या करते? प्लेटलेट्स लो हैं, सिरोटिक है, पॉसिबली वेरिसिस भी हैं, तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? अली से भी यही पूछूंगा, वो जरा ज्यादा देखते हैं, पंजाब में तो हम कम देखते हैं। हाँ, इसको आपने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया, क्योंकि जब डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास इंटरफेरॉन के अलावा अप्रूव ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। एंड दैट इज द इशू के सिरोटिक पेशेंट के अंदर अब आप इंटरफेरॉन दे नहीं सकते हैं। विद ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मैं इसको हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करता, and there is an investigational role of ezetimibe in reducing the viral replication of hepatitis D। इसके ऊपर गो के एक लोकल स्टडीज अहमदाबाद साहब ने की भी थी, उसके जो थोड़े बहुत रिजल्ट्स हैं भी सही कि जिसमें, लेकिन बहुत थोड़े सैंपल के ऊपर थी, 20-25 पेशेंट के ऊपर, तो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट उसका क्लिनिकली नहीं देखा गया, लेकिन ये कि इट डिड शोड सम रिडक्शन। अभी हम खुद भी इसके ऊपर कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इजिटामिब के रोल के ऊपर इन रिड्यूसिंग द रेप्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस डी, लेकिन जो अप्रूव ट्रीटमेंट है दैट इज इंटरफेरॉन, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो हम बी और सी की ट्रीटमेंट तो देते, डी का अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर रहे तो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर दैट। थैंक यू। अली, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? सर, ये इस पेशेंट में जो सिनारियो मुझे याद है कि बिलिरुबिन नॉर्मल है, ट्रांसअमाइनेजेस ज्यादा है, प्लेटलेट आई थिंक 102 है। जी जी। और तो दिस पेशेंट स्प्लिनोमेगाली है और अल्कलाइन फास्फेटेज वगैरह नॉर्मल है, पीटीआईएनआर सीरम अल्ब्यूमिन 3.2 है आई थिंक। जी जी। तो और इसके अलावा साइटीज वगैरह कोई नहीं है। सो दिस पेशेंट फॉल्स इन चाइल्ड क्लास ए, सिरोटिक लिवर चाइल्ड क्लास ए। अगर इसमें डी पॉजिटिव पीसीआर डिटेक्टेड है, आफ्टर काउंसलिंग विद पेशेंट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इंटरफेरॉन थेरेपी जो हमारे पास अवेलेबल है, पेगलेटेड इंटरफेरॉन, उसके फायदे और नुकसान दोनों इस पेशेंट्स के साथ डिस्कस करें, नंबर 1। नंबर 2, और क्लोज मॉनिटरिंग अगर वो फॉलो कर सकता है, मे बी हम उसको वीकली और या फोर्टनाइटली बुला लें। अगर वो क्लोजली फॉलो अप में आ सकता है, then we can offer treatment for hepatitis D if viremia is present. अदरवाइज अगर वो फार फ्लंग एरियाज का फॉलो अप लॉस करेगा, आ नहीं सकता, बहुत दूर का है, हर 2 इंजेक्शन के बाद आपके पास आ नहीं सकता, दैट विल बी मे बी डेंजरस फॉर द पेशेंट, बिकॉज हमारे पास इस वक्त हेपेटाइटिस डी को ट्रीट करने के लिए पेगलेटेड इंटरफेरॉन के अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है। सो क्लोज मॉनिटरिंग के साथ आफ्टर काउंसलिंग पेशेंट, benefits and disadvantages of
pegylated interferon दिया जा सकता है if patient agrees and agree with the close follow-up. जी sir. जी, thank you very much. I think it's about time. Kiran, thank you very much, Zeeshan and Dr. Ali. Dr. Ali Haider has joined from Larkana. He's a big supporter of our ECHO program and also a very good teacher and a very active member of Pakistan Society of Hepatology. So, Kiran, over to you, please. Thank you, Dr. Asad. Thank you, Dr. Zeeshan and Dr. Ali as well. So we do encourage cases from the spokes, और अगर आपको कोई केस प्रेजेंट करना है अपना तो you can send us, और अदरवाइज हमसे केस फॉर्मेट आप ले सकते हैं, उजैर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपके अपने केसेस अगर आप प्रेजेंट करवाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आपको एक और इन्फॉर्म करना था कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अपकमिंग echo sessions. Digestive echo session is on 16th November in afternoon, और IBD echo का session है 30th November 2022 at 10 p.m. We will share the details soon with you so you can register. We are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferosens Laboratories for the unrestricted educational grant, and Team PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody.